As you know, rather as we all know, that liver does not kill itself till we kill it. That is, the liver has the great capacity to regenerate itself, even when it is dying or it is dead. Thousands of years back, even the Greeks in their mythology believed the liver to have a capacity to regenerate. You might have heard the story of Prometheus, who was the Greek god of fire. He was punished by the another Greek god Zeus for having returned the fire to the mankind. So Zeus thought to punish him and he tied him to the rocks on the Caucasus Mountains. But every night an eagle would come that would eat a part of his liver away, as you can see here, eating. And then every following morning, that portion of the liver was found to have regenerated. So, in a way, I just wanted to tell you that even in Greek mythology, there was a concept of liver regeneration thousands of years ago. It sounds a myth, but it's a fact. Now, the format of my lectures will be as follows. In this lecture, today's first lecture, I will introduce you to the normal liver and the liver functions, how it functions, what does it do in our body. Then we will see what is hepatocyte injury and how does an injured hepatocyte respond to an injury. Then liver failure, portal hypertension, and cirrhosis. We take them briefly one by one. So, how can you keep your liver healthy? There are multiple food items and fluids that if we include them in our daily diet, we can keep our liver healthy. तो आपके पास इसके अंदर ऑयल्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, like you have olive oil, lemon juice, carrots, beets, green tea, turmeric, leafy vegetables, green avocado, garlic, spinach, and multiple other things that if you take them, you can have your liver healthy, but not the fatty diet, not the junk ones. This is the normal liver. A normal liver is a large organ in our body that weighs about 1.5 kg, that ranges from 1.2 to 1.4 kg. And it has a dual blood supply, that is, it is perfused by the portal as well as systemic circulation. So it's a very well vascularized organ in our body. Now, for the understanding of the liver diseases, the pathologists, we have divided the liver microarchitecture into two types, that is lobular and acinar. ये दो मॉडल्स हैं हमारे पास on the basis of microscopy, lobular and acinar model. Lobular model में क्या होता है कि in the center there is a terminal hepatic vein or the central vein, and from there radiate the cords or plates of hepatocytes toward the portal tracts or the portal canals. These are also known as portal triads, but I will tell you later that it is better not to call them a portal triad. Now, these regions which are close to the central vein, they are known as centrilobular, and those which are near the portal tracts, they are known as periportal regions. The other is the acinar model. This is based on the blood supply to the liver, and it has been divided into three zones, zone 1, 2, and 3, where you will see that zone 1 is mostly oxygenated and perfused, while zone 3 has the least amount of oxygen and blood perfusion. This is the micrograph that shows you the acini as well as the lobule. This is an acinus. Here is a portal triad, which you are not unable, which are you are not able to see here. This is zone 1. In between is zone 2, and this is zone 3. If you see the colors, zone 1 is, you will see it is reddish in color, while going towards zone 3, it is
bluish, that is deoxygenated blood, and here is the oxygenated blood. So this is an isthmus. Now this is a lobule. What you see in the lobule is that there is the portal tract, and there are cords, tuberculae, or plates of hepatocytes radiating towards the central vein. So this is the lobular model. In another micrograph, what we see is a normal portal tract, and this is the central vein. You can see portal vein, hepatic artery, and bile duct. And this is the oxygenated blood, and this is deoxygenated blood. Then there is another photograph showing normal liver microscopy. Again, the same things, portal triad at the periphery with the central vein or terminal hepatic vein in the center and cords of hepatocytes. These are normal hepatocytes. I will tell you what's a normal hepatocyte. This is again a portal tract which shows hepatic artery, portal vein, and bile duct. But in addition to these three structures, there are also connective tissue cells, which are fibroblasts, which are lying in this portal tract, and there can be nerve fibers as well. So it's a misnomer. It's better not to call it as a triad, rather you call it as a tract, because triad का तो मतलब है कि इसके अंदर 3 चीजें हैं, लेकिन हमारे पास तो इससे 3 से ज्यादा चीजें हैं. आपके पास हेपेटिक आर्टरी भी है, पोर्टल वेन भी है, बाइल डक्ट भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, तो ये तो 3 से ज्यादा हो गए. सो इसीलिए हम बेहतर है कि हम इसको कहें कि इट्स ए पोर्टल ट्रैक्ट या पोर्टल कैनाल. पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, लिम्फेटिक्स इन एल. ठीक है. Again, the same thing, but here there is another thing which is limiting plate. What is the limiting plate? It is that group of hepatocytes which are lying in close proximity to the portal triad. जितने ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट्स होंगे और जो के इन वेरी मच क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दी पोर्टल ट्रैक्ट्स होंगे, उनको हम लिमिटिंग प्लेट कहते हैं. Another photo showing you the limiting plate. The layer of hepatocytes immediately bordering the portal tract is called the limiting plate. The limiting plates get disturbed in diseases like hepatitis. कोई डिजीजेज होंगी, हेपेटाइटिस होगी, तो लिमिटिंग प्लेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, और जो इंफ्लेमेटरी सेल्स पोर्टल ट्रैक में होंगे, दे विल स्पिल ओवर इनटू द हेपेटिक पेरेन्काइमा हियर, और इसको हम इंटरफेस हेपेटाइटिस कहेंगे. वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में. अगेन, here these are hepatocytes, rows of hepatocytes. These are their microvilli. Again, hepatocytes. This is pink space. This is space of Deci. This is space of Deci. This is lined by hepatic sinusoids. These are sinusoids which are in turn lined by fenestrated एंडोथीलियम, यानी इनकी एंडोथीलियम लाइनिंग के दरमियान में गैप्स होते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू ट्रेवल फ्रॉम द ब्लड इनटू लिवर. तो ये है, यहाँ पे मैंने आपको स्पेस ऑफ डेसी दिखानी थी. ये स्पेस ऑफ डेसी है, लाइंड बाय फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ द साइनोसॉइड्स. अगेन, हेपेटोसाइट्स, साइनोसाइड्स, और फिर इधर दोबारा हेपेटोसाइट्स. Now, between hepatocytes and sinusoids, there is this space of Deci, and this space of Deci contains a special type of cell which is known as stellate cells, या इसको हम आइटोसेल भी कहते हैं, ITO, आइटोसेल. इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स विटामिन ए. विटामिन ए जो है वो स्टोर करता है ये आइटोसेल. और दूसरा, इन डिजीज प्रोसेस जबकि सिरोसिस हो रहा हो, इट गेट्स स्टिमुलेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, और जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो ये फाइब्रोसिस में पार्टिसिपेट करता है. फाइब्रोसिस में पार्टिसिपेट करने के अलावा फिर ये सिरोसिस की तरफ लीड कर जाता है. Puffer cells है हमारे पास. Puffer cells are the
सेल्स ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द हिपेटोबिलियरी ट्रैक्ट, ये लिवर के साइनोसॉइड्स के अंदर पड़े होते हैं, और ये भी स्टार शेप से ही होते हैं। यहाँ पे भी ये है, इधर भी ये है, दो ये Now you will see what are the normal functions of the liver briefly. लिवर के पास बेतहाशा काम करने को है, तो उसमें हमारे पास प्रोसेसिंग है एमाइनो एसिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, विटामिन की, सिंथेटिक प्रोसेसिंग है जिसके अंदर लिवर सिंथेसाइज कर रहा है सीरम प्रोटीन्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स, फिर डिटॉक्सिफिकेशन फैक्टर फंक्शंस हैं इसके पास। क्या क्या चीज डिटॉक्सिफाई कर सकता है लिवर? इसमें हमारे पास ड्रग्स होती हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि लिवर ने डिटॉक्सिफाई करने होते हैं, सो दैट वी गेट रिड ऑफ दोस टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। अगर लिवर ये सब कुछ नहीं कर रहा तो ये सब कुछ एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और फेलियर की तरफ चला जाएगा। देन इट सिंथेसाइजेस, इट फॉर्म्स वाइल एज वेल। फिर इतना सारा काम करने के बाद लिवर जो है, जाहिर है जो जितना काम करेगा उतना वो at the risk of disease भी होगा। So thus the liver bears the brunt of certain types of diseases like metabolic, toxic, ischemic, neoplastic, vascular। ये तमाम इंजरीज जो हैं लिवर को डैमेज करती हैं। these are normal hepatocytes. What's a normal hepatocyte? It's a large granular cell present in the liver। ग्रैनुलर इसलिए कि इसके अंदर एबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बिकॉज आपको अभी मैंने बताया इसमें बहुत सारे सिंथेटिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इट इज पिंक इन अपीयरेंस एंड इट हैज one nucleus or two nucleus or even four nuclei with prominent nucleoli. You can see hepatocytes with tiny granules in the cytoplasm, and ये nucleus के अंदर if you are able to discern the nucleoli, ये भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, तमाम न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है। और ये वाइट स्पेसेस जो हैं दीज आर साइनोसॉइड्स, और इनके अंदर ये ब्लूइश से जो हैं ये कूपर सेल्स हैं। Hepatocytes are large polyhedral, yeah, you can say polygonal cells making up about 80% of the liver. 2 to 4 nuclei, large and spherical, with at least 2 nucleoli in every nucleus. Bile canaliculi are present between adjacent hepatocytes. ये मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। The space of Deci, which I have shown you, और perisinusoidal space इसका दूसरा नाम है, is located between hepatocytes and sinusoidal endothelial cells. It contains stellate cells और itocells, which I told you. Sinusoids दोनों तरफ liver hepatocytes के पड़े हुए होते हैं और they are lined by fenestrated endothelium. Again, these are normal hepatocytes with nucleus and prominent nucleoli, and these are white area sinusoids. Sinusoids, hepatocytes, granular cytoplasm, and this brown thing is bile pigment. Now, what happens to hepatocyte in injury? How does it mold itself in different types of injury? हेपेटोसाइट के पास बहुत सारी शेप्स होती हैं जिनको वो एज्यूम कर लेता है इन डिजीज प्रोसेसेस। लाइक हियर यू आर सीइंग दीज आर ऑल नॉर्मल हेपेटोसाइट्स, normal hepatocyte, but one thing is eye catching. You will be able to see this red circle like thing. ये रेडिश या डीप पिंक सा गोला सा आपको नजर आ रहा है, ये एक डिजीज हिपेटोसाइट है। इसको क्या हुआ है? It has gone shrunken, it has become small in size, it has become deeply eosinophilic. इसका न्यूक्लियस डिसइंटेग्रेट कर गया है, पिक्नोटिक हो गया है। इसको हम एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं। आपने देखा है ना एपोप्टोसिस, आपने थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ, व्हाट इज एपोप्टोसिस? दिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इसमें ये एपोप्टोटिक बॉडी बन गई है, इओसिनोफिलिक होती है। यहाँ पे भी यू आर सीइंग मल्टीपल एपोप्टोटिक बॉडीज, ये भी, यहाँ पे भी ये। तो ये श्रंकन हेपेटोसाइट है विद द पिक्नोटिक न्यूक्लियस।
इसको हमारे पास और भी देयर आर नेम व्हिच वी हैव गिवन टू इट, इट्स आल्सो नोन एज काउंसिलन बॉडी, एसिडोफिलिक बॉडी, और ये दिखाता है कि इंडिविजुअल सेल नेक्रोसिस हो रहा है, यानी इंडिविजुअल हिपेटोसाइट नेक्रोसिस हो रहा है. They are seen in different types of inflammations, and you can hardly ever locate an apoptotic body in a normal liver. Now, ballooning degeneration. What is ballooning degeneration? लिवर वैसे ही हिपेटोसाइट वैसे ही ऑलरेडी काफी बड़ा सेल होता है, लेकिन ballooning degeneration का मतलब है इट बिकम्स इवन मोर लार्जर. क्यों? कि ये swelling हो जाती है, swollen हो जाता है, इसमें रिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं इन डिफरेंट डिजीज प्रोसेसेस, स्पेशली इन एल्कोहलिज्म. तो इसको हम कहते हैं बेलून हिपेटोसाइट, बेलून हिपेटोसाइट. Again, these are normal hepatocytes, cords of normal hepatocytes, while these are large cells, और इनके ये व्हाइटिश से नजर आते हैं विद सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस. अगर आप देखें तो इसको हम फैट सेल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बिकॉज बेलून हिपेटोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो आप देखेंगे वो दैट विल बी इन द सेंटर, बट इन अ फैट सेल इट्स न्यूक्लियस विल बी पुश्ड असाइड, इट विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी. सिग्नेट रिंग उसको हम कहते हैं. यही इसके अंदर मेजर डिफरेंस है अगर आपसे कोई पूछे इन OSPE और इन योर वाइवा. Now, ground glass. You must be familiar with the term ground glass. क्या होता है ground glass? अगर आप ग्लास को ग्राइंड करें तो ग्रेनुलर सी अपीयरेंस उसकी आ जाती है, ग्लासी, होमोजेनस, ओपेक. यू वोंट बी एबल टू सी बियॉन्ड दैट. इसके पीछे हमें कुछ नजर नहीं आएगा. इसी तरह से ये ग्राउंड ग्लास, लेकिन दिस इज अ नॉर्मल ग्लास, और यू कैन से दिस इज अ नॉन ग्राउंड ग्लास. ये नॉर्मल है, ये ट्रांसपेरेंट है, बियॉन्ड इट यू कैन सी. यहाँ पे हिपेटोसाइट्स भी ग्राउंड ग्लास हैं. नॉर्मल हिपेटोसाइट्स के दरमियान में स्कैटर्ड हमारे पास दीज आर ग्राउंड ग्लास. दे कैरी ए ग्लासी होमोजेनस पिंक अपीयरेंस. मैं अभी आपको फर्दर भी दिखाती हूँ. दीज आर ग्राउंड ग्लास, पिंकिश ग्राउंड ग्लास. ये तो एपोप्टोटिक सेल है और ये ग्राउंड ग्लास है. होता क्या है ग्राउंड ग्लास? Granular homogeneous eosinophilic cytoplasm of ground glass hepatocytes होती क्यों है? Because it contains hepatitis B surface antigen, जो कि हमारे पास hepatitis B में आती है. ये हम बाद में पढ़ेंगे. Then अभी ये सारा डिजीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है लिवर, ठीक है, याद है ना? तो मैलरी डैंक बॉडीज. व्हाट इज ए मैलरी डैंक बॉडी? ये भी पिंक नजर आती है. इसकी एक ट्विस्टेड रोप जैसी अपीयरेंस होती है, जैसे कि किसी रोप को आप कॉयल कर दें, ट्विस्ट कर दें. होता क्या है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि डैमेज्ड हिपेटोसाइट्स में नजर आते हैं हमें. इनको हम हाइलाइन बॉडीज भी कहते हैं, मैलरी बॉडीज भी कहते हैं, मैलरी डैंक भी कहते हैं, मैलरी हाइलाइन बॉडीज भी कहते हैं. अगेन, मैलरी डैंक बॉडी, you can see a twisted rope appearance. This is that twisted rope. This is that pinkish Mallory Dank body. Large, poorly defined accumulations of eosinophilic material in the cytoplasm of damaged hepatic cells, or in certain forms of cirrhosis, especially those due to alcoholism. और इनके दूसरे नाम मैंने आपको बता दिए. Cholestasis. Cholestasis में क्या होता है? There is accumulation of bile pigment inside hepatocytes or outside. It is because of abnormal synthesis or bile flow in the hepatocytes. और ये हमारे पास hepatocytes की जो appearance आती है वो foamy सी हो जाती है, and we call that feathery degeneration of hepatocytes. ये देखें, droplets of bile pigment accumulate within the hepatocyte, which can take a fine foamy appearance known as feathery degeneration. ये हमें नजर कहाँ पे आता है? Cholestasis, both obstructive and non-obstructive cholestasis होता है. Accumulation of bile pigment within the hepatic parenchyma. इसकी डिटेल बाद में. और ये फिर से एक हिपेटोसाइट है, फोमी सा है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट है. इट हैज अंडरगॉन फेदरी डीजेनरेशन इन कोलेस्टेसिस.
These are normal hepatocytes. In between them, these are bile canaliculi. You are seeing these bile canaliculi in normal hepatocytes. What happens in cholestasis? Your hepatocytes, they become enlarged, or you can say they undergo ballooning, and this bile canaliculi has also become dilated, and these droplets are those of bile. तो ये है cholestasis. Another micrograph that shows you bile pigment in the form of brown droplets inside the hepatocytes. ये भी वही है, इसमें dilated bile canaliculi या expanded bile canaliculi होती हैं. Hepatocyte dropout. ये कब होता है? When there is massive liver necrosis, we feel that the hepatocyte, they have lost their position, they have lost their place, and they are replaced by macrophages. And रेटिकुलर मेशवर्क भी उनके इर्द गिर्द जो है वो भी डिसइंटेग्रेट कर जाता है. तो इस तरह से हिपेटोसाइट्स दे सीम टू हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम देयर एरिया, और वो भी पिक्नोटिक से हो जाते हैं, जैसे कि यू आर एबल टू डिसर्न ओवर हियर. ठीक है. Then there is spotty necrosis. This is also called focal necrosis. जब एक single cell या small group of hepatocytes they undergo necrosis, this is known as spotty necrosis. Confluent necrosis and collapse. जबकि हमारे पास मल्टीपल हेपेटोसाइट ग्रुप्स जो हैं they have undergone necrosis or death, this is known as confluent necrosis. Substantial areas of liver they seem to have undergone necrosis. ये फिर एक ब्रिजिंग नेक्रोसिस हो सकता है, जबकि हमारे पास नेक्रोटिक एरिया जो है वो दे गेट जॉइंट टुगेदर, या वो पोर्टल ट्रैक्ट और सेंट्रल वेन से, या पोर्टल ट्रैक्ट टू पोर्टल ट्रैक्ट, और यही हमारे पास फाइब्रोसिस में भी होता है जो अभी हम देखते हैं. जैसे ब्रिजिंग फाइब्रोसिस, fibrous bands they link portal tracts and or central veins, or they link portal tract to portal tract, or they link central vein to central vein. This is the portal tract. This in bluish you will see these are fibrous tissue bands going towards the central vein. Another micrograph that shows you bridging fibrosis. ये chronic inflammation में होता है. इसमें आप देखें fibrotic bands हैं between portal tracts and central vein. ये सेंट्रल वेन है, ये पोर्टल ट्रैक्ट है, ये जो आ रहा है फिर यूं हमारे पास लॉबुलर आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और फाइब्रोसिस होता चला जाता है. दैट लीड्स टू cirrhosis. I had already mentioned interface hepatitis. This in yellow is the limiting plate जो मैंने आपको बताया था, is that portion of the hepatocytes which are in close vicinity to the hepatocytes in the portal tract. जब यहाँ पे inflammatory process होगा, that will disrupt or break down this limiting plate and that will spill over into the hepatic parenchyma. इसको हम piecemeal necrosis भी कहते हैं और interface hepatitis भी कहते हैं. These are other pictures that show you the same thing. Interface hepatitis inflammatory process है और limiting plate का breakdown होगा तो वो spill over हो जाएगा. After all these things, now we come to the first disease process which is hepatic failure. That means कि बहुत सारा liver जब हमारा जो है उसके फंक्शन लॉस हो जाएगा तो हम hepatic failure की तरफ जाएंगे. The most severe result of liver disease when 80 to 90% of the liver function is lost before liver failure. पैटर्न ऑफ इंजरी कैसा होता है, होता क्या है, कैसी इंजरी होती है जबकि हमारे पास हेपेटिक फेलियर होता है. और फेलियर किस तरह का हो सकता है? अगर एक्यूट लिवर फेलियर है तो हमारे पास क्या होगा? With acute liver failure, with acute liver disease associated with encephalopathy within 6 months of the initial diagnosis. पेशेंट आया आपके पास, आपने उसको इतना वक्त तो वर्कअप कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ इसका लिवर डिजीज है. अब आप उसको देखते जा रहे हैं, फॉलो अप करते जा रहे हैं.
6 मंथ्स तक आपने उसको देखा है और फिर आप देख रहे हैं कि नहीं भाई इसका लिवर तो डिटीरियोरेशन की तरफ चलता चला जा रहा है, सो देयर इज एन ऑन गोइंग डिस्ट्रप्टिव प्रोसेस गोइंग इन द लिवर, जो कि एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ ले गया और हिपैटिक एनकेफ डेवलप हो गया है, यानी कि हिपैटिक फेलियर इतना हुआ कि उसने ब्रेन डैमेज कर दिया है, तो उसको हम हिपैटिक एनकेफलोपैथी कहते हैं। और ये विद इन दी फर्स्ट 6 मंथ्स आपको मिल जानी चाहिए टू लेबल इट एज एक्यूट लिवर फेलियर। देन वी हैव फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर। व्हाट इज फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर? ये टाइम आपने जरूर नोट करना है। व्हेन एनकेफलोपैथी is seen within 2 weeks of the onset of jaundice। पेशेंट आया आपके पास जॉन्डिस के साथ, 2 वीक तक आप उसको देखते रहे और फिर उसमें एनकेफलोपैथी डेवलप हो गई इतनी जल्दी, इतनी सडन, सो यू विल लेबल इट एज फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर। एक होता है सब फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर। क्या होता है कि you will see that within 3 months of the appearance of the jaundice, when the patient came to you, the liver will undergo encephalopathy। So उसको हम कहते हैं सब fulminant liver failure। अब acute liver failure में होगा क्या? There is massive hepatic necrosis, और massive hepatic necrosis हमारे पास कब होता है? Either we have take drugs, even a most common drug that we often take, like me for headaches, I take so many Panadols a day, that is acetaminophen. Then there are antidepressants which certain people take, and there is halothane and many other drugs. They all lead to acute liver failure. Then viral hepatitis like A, B in its acute phase, or autoimmune hepatitis. और अगर chronic liver disease हो रही है, this is the most important route to liver failure, and it leads to cirrhosis, and it's caused maybe hepatic or vascular or biliary, they all lead to cirrhosis and then liver failure। liver failure and cirrhosis का बहुत गहरा ताल्लुक है। hepatic dysfunction without overt necrosis। hepatocyte जनाब हमारे जो हैं वो they are there but they are not functioning normally। they are there यानी कि वो उनमें necrosis नहीं हुआ, लेकिन स्टिल दे आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली। ये कहाँ पे होगा? एक्यूट फैटी लिवर में होगा, प्रेगनेंसी में, राई सिंड्रोम में, या ड्रग्स और टॉक्सिन में। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेपेटिक फेलियर हमारे पास जॉन्डिस होगा, बिकॉज बाइल जो थी उसकी ट्रांसपोर्ट, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। हाइपोएल्बुमिनिया होगा, हाइपर एमोनीमिया होगा, एमोनिया जो है वो दैट विल बी एक्यूमुलेट इन बॉडी। इसकी वजह से पाम इरिथीमा होंगे, फ्लैपिंग ट्रेमर्स होंगे हमारे पास, स्पाइडर एंजियोमा स्किन में होंगे, हाइपोगोनाडिज्म, गायनोकोमेस्टिया इन मेल्स, एनकेफलोपैथी व्हिच आई टोल्ड यू, एंड कोएगुलोपैथी, क्योंकि हमारे कोएगुलेशन फैक्टर्स लिवर से कुछ आ रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा? अगेन hepatic encephalopathy, coagulopathy, hepatorenal syndrome, hepatopulmonary syndrome। Then portal hypertension। What is portal hypertension? There is increased resistance to portal blood flow। portal blood flow लिवर में जा रहा है बट रेजिस्ट हो रहा है, तो बैक फ्लो भी डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा। उसकी कॉजेस में हमारे पास प्री हिपैटिक हैं, इंट्रा हिपैटिक हैं, पोस्ट हिपैटिक हैं। प्री हिपैटिक पोर्टल हाइपरटेंशन कब होगी? ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस हो रहा है, पोर्टल वेन इज नैरोइंग, और या फिर मैसिव स्प्लेनोमेगाली हो रही है। इंट्राहिपैटिक बिकॉज द डिजीज प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड द लिवर, जैसे कि इन सिरोसिस, सर्टेन इन्फेक्शंस लाइक जैसे कि शिस्टोसोमियासिस, ग्रैनुलोमास में टीबी है, सार्कोइडोसिस है। मैसिव फैटी चेंज है जो कि नॉन सिरोटिक होता है। पोस्ट हिपैटिक में इफ देयर इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, हिपैटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये तमाम चीजें पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ ले जाती हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन में होता क्या है? पोर्टल वीनस ब्लड फ्लो इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन है। When this is hyperdynamic circulation, it is caused by arterial dilatation। arterial dilation हो रही है, वो क्यों हो रही है? बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये तमाम चीजें जब हो रही हैं तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रही हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखें
इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही है, आर्टीरियल डायलेटेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होगी। जब सर्कुलेशन हाइपर डायनेमिक होगी तो पोर्टल वीनस ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। इसी तरह हमारे पास एसआईटीज भी हो जाएगी। एसआईटीज पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्यों हो जाएगी कि एक्सेस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी आ जाएगा, और ये डिटेक्ट कब होगा, व्हेन मोर देन 500 ml आर कलेक्टेड इन द पेरिटोनियल कैविटी। सीरस फ्लूइड होता है एंड इट कंटेन्स अबाउट 3 grams per deciliter of albumin. रेशो सीरम टू एसआईटीज की मोर देन 1.1 ग्राम डेसीलीटर होती है। इसमें हमारे पास सेल्स कौन कौन से आ सकते हैं, मीजोथेलियल सेल्स हो सकते हैं, इंफ्लेमेटरी सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हो सकते हैं, आरबीसीज हो सकते हैं। इसका पैथोजेनेसिस में क्या होगा, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस ऑफ डीसी व्हिच आई हैड शोज यू। फिर उसके बाद लीकेज होगी फ्रॉम द हिपेटिक इंटरस्टिशियम इनटू द थोरैसिक डक्ट। नॉर्मल कैविटी हमारे पास जो है उसका फ्लो जो होता है 800 to 1000 ml पर डे होता है, लेकिन सिरोसिस में ये 20 लीटर पर डे हो जाता है और ये रिच इन प्रोटीन्स एंड लो इन ट्राइग्लिसराइड्स होता है। इसके अलावा हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स बन जाते हैं, स्पेशली इन द रीजन ऑफ इसोफेगस, जिनको हम इसोफेजियल वेरिसेस कहते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो मैसिव हेमरेज होता है, इवन लीड्स टू पेशेंट डेथ। इसके अलावा हेमरॉइड्स हो सकते हैं जब एनल कैनाल के रीजन में शंट्स बन जाए। इसोफेगो गैस्ट्रिक शंट तो मैंने इसोफेजियल तो बता दिए, गैस्ट्रिक भी हो सकते हैं, फेल्सिफर लिगामेंट ऑफ लिवर में हो सकते हैं, पेरिटोनियम में हो सकते हैं, स्टेनोमेगाली बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन। हिपेटोरीनल सिंड्रोम, व्हाट इज हिपेटोरीनल सिंड्रोम? सीवियर लिवर डिजीज हो रही है, रीनल फेलियर हो रहा है, जबकि हमारे पास प्राइमरी किडनी डिजीज कोई नहीं है। So in severe liver disease with renal failure without primary kidney disease, how does it show? It shows itself in the form of a drop in urine output, increased serum urea and creatinine. आप याद रखिएगा किडनी नॉर्मल है, लेकिन लिवर फेलियर की वजह से किडनी अफेक्ट हो रही है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम उसका एक्टिवेट हो रहा है, वो एक्टिवेट हुआ तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई तो यूरिन आउटपुट कम हुई, तो जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम हुआ तो यूरिन आउटपुट कम हुई, यूरिन आउटपुट कम हुई तो सीरम यूरिया और क्रेटिनिन इंक्रीज कर गए। ठीक है। हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम कॉजेस में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, बिकॉज ये भी लिवर जनरेट कर रहा होता है, एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, चेंजेस इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो, सेकेंडरी टू हेपेटिक फेलियर। इसकी हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स में you will see dyspnea, cyanosis, platynia, which is easy breathing when you lie down, orthodeoxydia, there is fall in arterial blood oxygen when you lie down, and this is pathognomonic of hepatopulmonary syndrome या orthodeoxydia। ये आपको मेडिसिन वाले डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू सिरोसिस। पुस्तक से हम सिरोसिस का नाम ले रहे हैं। व्हाट इज सिरोसिस? इट इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ इन द वेस्ट। और कॉजेज में इसके क्रॉनिक वायरल इंफेक्शंस, अल्कोहलिज्म, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस जिसको नैश भी कहते हैं, ऑटो इम्यून एंड आयरन ओवरलोड जिसको हीमोसिडोसिस भी कहते हैं। वेस्ट में तो अगर आप अल्कोहलिज्म भी नंबर 1 पे कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन पाकिस्तान इफ somebody asks you the causes of cirrhosis, always say chronic viral infection first, remember. now होता क्या है सिरोसिस? ये एक डिफ्यूज प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास रीजेनरेशन और डेथ ऑफ द हेपेटोसाइट के 7 साल चल रहे हैं, accompanied by fibrosis. So it's a diffuse process characterized by fibrosis and the conversion of normal liver architecture into structurally abnormal nodules. तो ये हमारे पास इस तरह से है, डिफ्यूजली प्रेजेंट है, इसके अंदर रीजेनरेशन भी हो रही है, फाइब्रोसिस भी हो रही है, लिवर सेल डेथ भी हो रही है,
तो एबनॉर्मल से नोड्यूल्स हमारे पास बनते चले जाएंगे। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में फाइब्रस टिश्यू बैंड्स एंड स्कार्स अराउंड दी एडजेसेंट लोब्यूल्स, माइक्रो नोड्यूल्स होंगे जब लेस देन 3 मिलीमीटर, और मैक्रो होंगे व्हेन ओवर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड दे आर एनसर्कल्ड बाय बैंड्स। पैथोजेनेसिस में हम क्या देखते हैं? देयर इज डेथ ऑफ हेपेटोसाइट्स और नेक्रोसिस, नंबर 1। नंबर 2, एक्स्ट्रा सेलुलर matrix deposition in excess vascular reorganization। नॉर्मल ईसीएम या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होती है लिवर की, उसके अंदर टाइप 1, 3, 5 एंड 11 कोलेजन पड़ा होता है। भला कहाँ कहाँ पे? लिवर कैप्सूल में, पोर्टल ट्रैक्ट्स में एंड अराउंड द सेंट्रल वेन। एंड टाइप 4 कोलेजन स्पेस ऑफ डीसी में होता है। लेकिन सिरोसिस में हमारे पास टाइप 1, टाइप 3 और अदर टाइप्स ऑफ कोलेजन दे गेट डिपॉजिटेड इन दी स्पेस ऑफ डिसी। और वो क्यों? बिकॉज आइटोसेल या कि स्केलेट सेल जो कि स्पेस ऑफ डिसी में है, दैट बिकम्स स्टिमुलेटेड। एंड व्हाई डज इट बिकम स्टिमुलेटेड? It is under certain factors, right, like reactive oxygen species, growth factor, tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, lymphotoxins, portal fibroblast। ये तमाम चीजें जो हैं ये आइटोसेल को स्टिमुलेट करती हैं। वो फिर फाइब्रोसिस, मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाता है, फिर फाइब्रोसिस करता है और एंड में सिरोसिस हो जाता है। वेस्कुलर इंजरीज, थ्रोम्बोसिस वगैरह भी जो हैं वो भी सिरोसिस कर सकती हैं। Now these are the photographs that show you on the right side a normal liver with, here you can see hepatocytes with their microvilli and bile canaliculi in between them. This widened out is the space of DC। ये इतनी वाइड नहीं होती लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वाइड दिखाई गई है। And this space of DC is containing this itocell which is in its resting or quiet phase, and this space of DC is lined by sinusoids which have fenestrated endothelium gaps के साथ। टूफर सेल भी यहाँ पे क्वाइट सी स्टेट में पड़ा हुआ है। दिस इज द डेलिकेट मैशवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। नाउ जब सिरोसिस होगा तो क्या होगा? हेपेटोसाइट्स, इनके माइक्रोवेलाई दे स्टार्ट लूजिंग। हिपेटोसाइट्स के माइक्रोवेलाई आप देखेंगे कितने डिमिनिश्ड, कितने कम हो गए हैं। स्पेस ऑफ डीसी में आइटोसेल पड़ा था, वो स्टिमुलेट हो गया, माइटोसिस उसके अंदर होना शुरू हो गई और वो आइटोसेल जो है वो मायोफाइब्रोब्लास्ट बन गया आफ्टर बिकमिंग एक्टिवेटेड। इतना कोलेजन डेपोजिशन कर रहा है ये आइटोसेल, इतना ज्यादा दैट ये जो साइनोसॉइड्स के दरमियान में एंडोथेलियम गैप्स थे, फेनेस्ट्रेशन थी, ये भी ब्लॉक होना शुरू हो गई। ये जब ब्लॉक होना शुरू हो गई तो देयर विल बी इम्पिडेंस ऑफ द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड टुवर्ड्स द हेपेटोसाइट्स। ये भी हो गया कि लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशन होना शुरू हो गए। कूफर सेल भी ये भी एक्टिवेट होना शुरू हो गया। सो ये तमाम चीजें मिलके जो हैं ये इस सिरोटिक लिवर की तरफ लेती चली जा रही हैं। डेंस मैट्रिक्स है, लॉस ऑफ माइक्रोवेलाई है और लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशन है। देख लिया आपने। उसके बाद हाउ डज अ पेशेंट विद सिरोसिस प्रेजेंट? ही विल से एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, वीकनेस है, और सीक्वल में उसके पास प्रोग्रेसिव लिवर फेलियर होगा, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, और वेरी मच लॉन्ग स्टैंडिंग सिरोसिस जो बहुत सालों से पड़ा हुआ था, दैट कैन लीड टू हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लेकिन हर सिरोसिस हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज नहीं करता। मेल न्यूट्रिशन होगी, स्किन स्पाइडर एंजियोमास है, इसोफेजियल वेरिसिस है, स्प्लेनोमेगाली है, कैपिटमेजी से हैं, और हमारे पास गोनेडिज्म, हेमरॉइड्स हैं, हाइपोगोनेडिज्म है, और एसाइटिस तो है ही है। ये नोडुलर अपीयरेंस ऑफ द लिवर इन सिरोसिस देख रहे हैं आप, कितने मल्टीपल नोड्यूल्स हैं, इवन ऑन द कट सरफेस इसके अंदर भी नोड्यूल्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली आपको नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, सराउंडेड बाय फाइब्रस टिश्यू बैंड इन ब्लू। ये तमाम फाइब्रस टिश्यू बैंड्स हैं। और लेक्चर टाइम ही होगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।